एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया सुरक्षित स्थान पर, और तमाम जो दमकल कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी थे, सभी वहां पर मौजूद थे। और क्या कारण है आग लगने के पीछे वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, वो जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन सभी सुरक्षित हैं, ये राहत की खबर है, सभी को बाहर निकाला गया। तो आग लगने के पीछे कारण क्या है उसकी भी जानकारी आपको दी है। हल्की स्पार्किंग होना, ओवर हीटिंग होना, फुल इमरजेंसी के बाद उड़ान को रद्द कर देना, टेक ऑफ के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी आना। तो दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर देख सकते हैं आप, जहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई स्विस एयर की फ्लाइट की। आग लगने की घटना इस फ्लाइट में सामने आई थी, कारण इसके पीछे फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है और जांच पड़ताल जारी है। जो टेक्निकल टीमें हैं वो खंगाल रही है कि किस वजह से इंजन फेल हुआ था, क्या इसका मुख्य कारण है, और उसे दुरुस्त किया जा रहा है। और इस खबर पर वंदना सिंह हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि कल मतलब ये जो घटना हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पर स्विस एयर की जो फ्लाइट के साथ में, क्यों अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्या इसके पीछे मुख्य कारण रहता है? Thank you for patching me up. This is very unfortunate, but we have to also understand that these problems are common. They can happen. At the end of the day, it is a services industry. And in the services industry, problems happen. Now, things as serious as engine failure, obviously, if the pilot has detected it, he's taken the right, and the flight has been aborted, the flight has been cancelled. Now, what they're going to check are the logs. They're going to check the maintenance, the engineering checkup, the the airworthiness given by the flight checker. All of that is going to be done, and they will go into as to why this has happened. When did this equipment go last on maintenance check? What were the causes of it? But first and foremost priority of the pilot is of the captain is to make sure that the passengers are safe, the equipment is safe, and always that comes before anything else. So let the checks happen. It is possible that there was a snag. It is possible that the temperatures keep changing. We see that high temperatures that are soaring in Delhi right now. Please understand that there could be many causes, and let that be investigated thoroughly before we get into any speculation. And what I would say is that it is the right step taken in the right direction so that they can check. And an airline like Swiss Air or Lufthansa or Austrian, which are part of the same group, Star Alliance group, are very serious when it comes to their maintenance, their quality of the equipment, the technical quality of the equipment, and they do all the checks very thoroughly. So I'm glad that they took this decision. Yeah, but I think, ma'am, people really wanted to know that how do the technical team ensure such situations that every technical part, every machine is going well before the flight takes off? Yes, this is a normal SOP. This is a normal procedure. So let's say an equipment that's landing in, let's say it's an Airbus 330 or it's a Boeing, whatever equipment it is, it's landing from A to B. Let's say it's coming from Zurich to Delhi, and that it has to take off back to Zurich from Delhi. The entire maintenance checkup and all the quality checks that are done prior to the flight being given a double green tick by all the parties involved, including a DGCA representative, including an engineering supervisor, including the ops control,
And once all of this is done, then the captain is also signing it off. Once all of this is done, only then the flight is given a clearance to take off. ठीक है। साथ ही मैम मुझे लगता है कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि अगर पिछले इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे और काफ़ी जो डैमेज है वो यहाँ पर हुआ है, तो क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जैसे ही कोई टर्बुलेंस भी होता है हल्का सा तो लोग पैनिक में आ जाते हैं। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑन वन साइड, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। एक साइड से वी से दैट एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इज द सेफेस्ट मोड टू फ्लाई। दूसरी साइड से हम देख रहे हैं कि हर आम दिन, हर महीने, ऑलमोस्ट वंस इन 10-15 डेज कुछ ना कुछ हो रहा है व्हेन इट कम्स टू द एविएशन स्नैग। जो हमें ये देखना है कि जो हमारे 2 मेजर प्लेयर्स हैं, which is Boeing and which is Airbus industry, ये दो, and plus जो engine makers हैं, whether it's Rolls-Royce, whether it's Pratt and Whitney, that जब इनके quality checks होते हैं and one or the other part needs to be looked into, जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व किए जा रहे हैं बाय बोइंग और बाय एयरबस इंडस्ट्रीज, ये थर्ड पार्टी वेंडर्स, थर्ड पार्टी सप्लायर्स जो होते हैं, इनका थरो चेक होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू सी द पार्ट्स दैट दे सप्लाई, दे आर हैविंग द प्रॉपर क्वालिटी चेक एंड प्रॉपर डबल टिक दैट द पार्ट इज ओके। Now, यहीं पे हो सकता है that there is cost savings that are going on, just to save whatever we can, knowing the times we are living in. इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब जो चीजें आगे आ रही हैं, जो what we are noticing is that इन पे कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हुई हैं। I think this has been taken care of now by the stakeholders. And they are taking full cognizance of the fact that they will make sure that the third-party vendors and the third-party suppliers are doing everything possible, that otherwise they will be taken off the list by Boeing and by Airbus. तो ये बड़ा important है, पर ये हुआ है। ठीक है, Over to you, ma'am. जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी वंदना सिंह, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी थी, और साथ ही विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। साथ ही मैं जानना चाहूंगी, एक बड़ी घटना होते होते टली है, विमान में आग लग गई थी, टेक ऑफ के दौरान इंजन फेल हो गया था। अक्सर ऐसी घटनाएं देखी जा सकती है, कहाँ जो फेलियर है वो हमें या फेलियर जो है वो देखने को मिलता है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात है कि पहले हमको करेक्ट खबर होनी चाहिए। टेक ऑफ पे इंजन फेल हुआ है या पहले आग लगी है? आग बाद में कुछ कारणवश लग सकती है। लीकिंग ऑफ द ऑयल ऑन द हॉट ब्रेक पैड से धुआं दिख सकता है। इंजन में आग लगने की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ धुआं देखा गया है। इंजन फेलियर के कई कारण हो सकते हैं, स्टॉपिंग ऑफ फ्यूल सप्लाई हो सकता है, और कई कंटामिनेशन हो सकती है, कई चीजें हो सकती हैं कि इंजन क्यों फेल हुआ। अगर इंजन में आग लगती है एक इंजन में, तो पहले एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि आग लगी है। इट इज नॉट फायर, इट इज अ फ्लेम आउट। उसके बाद में धुआं देखा गया है। आमतौर पे देखा जाता है कि जब इंजन शट डाउन होता है वो धुआं होता है, धुआं देखा गया था, कोई फायर नहीं देखी गई थी। बट जो भी है, इन्वेस्टिगेशन अब होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या रीजन था। बट कमेंडेबल चीज ये है कि फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट था, एक इंजन था, उसके ऊपर पायलट ने एक इमरजेंसी लैंडिंग करी। वो अपने आप में ही काफी सराहनीय है, क्योंकि सिंगल इंजन लैंडिंग विद फुल लोड अपने आप में एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर देता है, जो एक्सपर्ट पायलट्स आराम से कर सकते हैं, पर उसमें कॉशन होना पड़ता है। एक ये बात है। पर अब जब पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा फ्यूल कंडीशन क्या थी, इंजन का लाभ ओवरऑल कब हुआ था, कौन सा पार्ट था जो चेंज किया गया था, क्या कोई ऐसा पार्ट था जो रेगुलरली चेंज मांगता था और उसको अवॉइड किया गया था, और ये किस कंपनी का तो जहाज पता है, कौन सा एयरक्राफ्ट था,
ये भी जरा हमें पता चलना चाहिए। तो ये क्या बोइंग था, एयरबस था, कौन सा जहाज था? तो उससे कई चीजें पता चल जाती हैं। पर अब जब पूरी हिस्ट्री, क्योंकि कई कंपनीज अपना नाम नहीं आने देना चाहती, तो वो अपना एयरक्राफ्ट का टाइप नहीं बताते, पर एयरलाइन का नाम बता देते हैं। ये जिस स्विस एयर को बताना चाहिए कि कौन सा टाइप का एयरक्राफ्ट, और फिर पता चलेगा आपको कि क्या बात थी। पर अब ये अच्छी बात है, और हम कांग्रेचुलेट करते हैं ग्राउंड क्रू और ए क्रू को कि उन्होंने एक हादसा टाल दिया। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी